Hello and welcome to today's class. Today we are just continuing the same series of important questions, and perhaps today's lecture is the last lecture of the chapter electric field and charges. Okay, and we have already discussed the question, short answer question and very short answer questions of a topic like electric charges and electric lines of force and also electric dipole. Now next one what we have to take today, that will be just called as that is your Gauss law and electric flux. Okay. Before we discuss, we are just discussing the question. I must let you know at least something about the Gauss law and the electric flux. Electric flux क्या होता है? Electric flux क्या होता है? Suppose we are having this is a given surface where then there are onslaughts of some electric lines of force. ये कोई सरफेस है जिसमें कई एक इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास कर रहे हैं, कुछ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे ऐसे पास कर रहे हैं, कुछ लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे ऐसे पास कर रहे हैं या कुछ डायरेक्ट पास कर रहे हैं. तो जो गॉस इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो मेजरमेंट को कहता है जिसमें कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉसिंग अ गिवन सरफेस नॉर्मली, एक इससे किसी सरफेस से नॉर्मली पास होने वाले टोटल इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं. वो एक जनरल डेफिनेशन हो गया. द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉसिंग a given surface normally is generally termed as electric flux, although it is in fact defined as the scalar product of electric field and the surface area. This is also another this is a mathematical definition. Okay, this is today's lecture 3. We will discuss some of the one marks question and 2 marks question. देखिए 1 मार्क्स क्वेश्चन तो इसमें होता ही नहीं है. गॉस थ्योरम में तो मैं बहुत कम ही सीबीएसई पेपर में मिलेगा कि व्हाट इज गॉस लॉ, ये कभी नहीं भाई. व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक लाइन में पूछे, दैट कुड नॉट बी आंसर्ड. बट देयर कुड बी सम क्वेश्चन, मिनिमम क्वेश्चन जो होता है 2 मार्क्स का होता है और मैक्सिमम 5 मार्क्स का होता है. 5 मार्क्स का क्वेश्चन कैसे होता है दैट वी विल नॉट डिस्कस हियर बिकॉज़ दे आर डायरेक्ट क्वेश्चन. जैसे डिफाइन गॉस लॉ, प्रूव गॉस लॉ, एंड एक पार्ट में दे दिया इफ देयर इज अ लाइन वायर ऑफ सरफेस ऑफ linear charge density lambda, then what will be electric field around it. So they are all part of the same question. Therefore आपको उसको तोड़ तोड़ कर आंसर लिखना है. फर्स्ट पार्ट का आंसर, सेकंड पार्ट का आंसर, थर्ड पार्ट का आंसर, अपने आप 5 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है. वो डिवीजन भी होता है, मार्क्स डिवीजन होता है पेपर में. लेकिन जो आपको जो 2 मार्क्स क्वेश्चन होता है और 3 मार्क्स क्वेश्चन, 3 मार्क्स में भी बहुत कॉन्सेप्चुअल आ जाता है, बहुत में डायरेक्ट डेरिवेशन या डायरेक्ट न्यूमेरिकल नहीं आता है. तो वो हम लोग अभी देखेंगे कि व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस वी हैव टू हैव 2 मार्क्स एंड 3 मार्क्स क्वेश्चन. लेट अस स्टडी the 2 marks question first, and that will be followed by our 3 marks question. Now let us see what is first question. First question is, consider a uniform electric field E equal to 3 into 10 to the power 3 I Newton per coulomb. Number 1 or number A part, what is the flux of this field through a square of 10 centimeter side whose plane is parallel to YZ plane. Number 2 or B part, what is the flux through the same square or flux through the same square if the normal to its planes makes an angle 60 degree with the x axis. ये दो क्वेश्चन, ये एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन के दो पार्ट. So now I am just giving you the closer look. You can just see, you have already observed. Let us see what is the solution of this. You know, normal to yz plane क्या होता है? Normal to yz plane जैसे ये yz plane है, ठीक है. तो yz plane, अगर ये yz plane है, अगर ये yz plane है तो ये हो जाएगा x एक्सिस, अगर ये yz है तो ये हो जाएगा x एक्सिस. तो x एक्सिस ही होगा इसका डायरेक्शन. x एक्सिस का यूनिट वेक्टर का होगा I. तो वेक्टर सबसे पहले एरिया वेक्टर निकाल दिए. देखिए, यू कैन जस्ट ऑब्जर्व the area vector. What is the area vector? Area vector equal 10 centimeter into 10 centimeter I, that is 100 I centimeter square or 10 to the minus 2 I meter square. ठीक है.
ये हो गया एरिया वेक्टर. And now what is the electric flux? Phi equal to E into A. E into A means E की जगह हम ये लिख देंगे 3 into 10 to the power 3 I, 3 into 10 to the power 3 I, and A की जगह 10 to the power minus 2 I. ठीक है, मीटर स्क्वायर. तो अल्टीमेटली क्या आएगा 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम. सेकंड पार्ट में लिखा हुआ कि ई ए प्लेन इटसेल्फ मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस. दैट मींस ई ए cos थीटा. ई ए cos थीटा हो जाएगा सेकंड पार्ट. दैट इज इक्वल टू cos 60 इज 1/2, दैट इज 15 मीटर पर 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम. दिस इज द सेकंड पार्ट. ओके, नाउ लेट अस कम टू द सेकंड क्वेश्चन. अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है. ये साफ साफ ये लिखा हुआ है इसमें. देखिए आप यू कैन वेरी इजीली सी what is the definition. To infinitely a large plane thin parallel sheets having a surface charge surface charge density is sigma 1 and sigma 2, where sigma 1 is greater than sigma 2 are shown in the figure. Write the magnitude and direction of the net field in the region mark 2 and mark 3. देखिए ये डायग्राम दिया हुआ है. You can see this is the first charge plate, the second charge plate. This is area 1 or mark 1. This is mark 2 and mark 3. You can just observe it, closer look. This is the closer look of this. You can just see what is the complete question. And now see, this is the direct one. तो इस एरिया में जो होगा तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज बोथ आर पॉजिटिवली चार्ज. तो ए से अवे फ्रॉम द चार्ज दैट मीन टुवर्ड्स बी हो जाएगा. तो वो सिग्मा 1 हो जाएगा. सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. और इसके लिए इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो दैट विल बी अवे फ्रॉम दिस चार्ज दैट इज टुवर्ड्स ए. बी से ए की ओर होगा इसके कारण जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड. तो नेचुरली से सिग्मा 2 इज लेस. तो यहाँ पर होगा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन 2 दिख रहा है आपको, रीजन 2. ठीक है. अब देखिए रीजन 3 के लिए जब देखेंगे तो वह इसके लिए भी अवे फ्रॉम होगा, इसके लिए भी अवे फ्रॉम होगा, क्योंकि दोनों से ही एक ही डायरेक्शन में है. तो ये E1 भी हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. ये भी हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. तो ये भी इस टाइप में हो जाएगा दोनों चीज. तो दोनों होने के मतलब क्या हो जाएगा कि आपको सिग्मा आप ये कह सकते हैं सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. यहाँ पर आपका ये रिजल्टेंट आ रहा है. इस केस में डायरेक्शन क्या है, इट इज अवे फ्रॉम बोथ द प्लेट्स, अवे फ्रॉम ए एज वेल अवे फ्रॉम बी. अवे फ्रॉम ए इस साइड में भी होता है लेकिन वो आपका रीजन 1 हो जाता है. लेकिन रीजन 1 पूछा ही नहीं गया, रीजन 3 पूछा गया. तो अब दोनों से अवे फ्रॉम ए एंड बी वो इधर इस डायरेक्शन में होगा. इट विल बी लाइक दिस. Okay, and this is how we have seen the questions along with the solution. Okay, ये तो आपका एक टाइप के क्वेश्चन हुआ, थोड़ा कॉन्सेप्ट बेस्ड है डेफिनेटली. और ऐसे भी जैसे कई दो मार्क्स के क्वेश्चन और बन सकते हैं इस टाइप के 2 मार्क्स. नाउ आई विल जस्ट राइट द क्वेश्चंस एंड आई विल नॉट राइट इट्स solution but rather I will explain its solution. Okay, the next that we have to discuss the other two marks question. The next question in the same series, that is of 2 marks question. Define electric flux, write its unit SI unit. फर्स्ट पार्ट में पूछा गया. सेकंड पार्ट में दिया है a spherical rubber balloon carries a charge that is uniformly distributed over its surface. As the balloon is blown up and increases in size, how does the total electric flux coming out of the surface change? Give reason. ये पहला क्वेश्चन. अब देखिए इससे हम पहले पार्ट में क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या यूनिट, क्या डेफिनेशन है, उसके यूनिट क्या है. बिल्कुल सिंपल से बात पूछा गया. तो आपको ये डेफिनेशन मैंने पहले ही कह दिया, तो नो नीड टू रिपीट इट्स, नो नीड टू राइट इट्स डेफिनेशन. एंड ओरली आई कैन जस्ट से दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स गिव्स द or electric flux measures the total number of electric lines of force which crosses total number of electric lines of force which crosses the
surface or given surface normally. I'm again telling you, there is the total number of electric lines of force or electric field lines, uh, electric field lines which crosses normally to a surface. Okay, जो normally to the surface जो cross करने वाले जो total number of electric lines of force उसकी measurement को हम लोग electric flux कहते हैं. वो पहला होगा. यूनिट क्या होता है, हम लोग क्या लिखते हैं, y what we write that phi equal to e into a. E का यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर कूलम. न्यूटन पर कूलम होता है ई का यूनिट, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट, इनटू एरिया. तो न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका यूनिट. तो वो भी पार्ट हो गया. सेकंड पार्ट में पूछा गया इसमें कि अगर कोई चार्ज दिया हुआ है बैलून के अंदर और ये बैलून के सरफेस पे, अब बैलून को हम धीरे धीरे फुला रहे हैं, बहुत एक्सपेंड कर रहे हैं, तो अब बताओ इलेक्ट्रिक फ्लक्स में क्या चेंज होगा. नेचुरली चार्ज पहले क्या होता है, पास पास था, और जरा फूलने के बाद चार्ज थोड़ा दूर दूर हो जाएंगे, बट टोटल नंबर ऑफ चार्ज इज नॉट चेंज. Total number of charge does not change. According to Gauss law, the electric flux is given by phi equal to 1 upon epsilon 0 into Q. So Q is unchanged. Therefore, there is no change. There is no question of having any change in electric flux. Electric flux में change नहीं होगा. बिल्कुल clear. अब देखिए दूसरा वाला क्वेश्चन क्या लिखा है. सेकंड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है देखिए. टू concentric metallic sphere spherical cells of radii r and 2r. एक का रेडियस r है, दूसरे का रेडियस 2r, are given charges q1 and q2 respectively. The surface charge densities on the outer surface of the cells are equal. Surface charge density on outer cells दोनों के equal है. तो find the ratio between q1 and q2. अब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं देखिए, सिंपल सी बात है. सपोज दिस इज वन, दिस इज सेकेंड वन, इसका रेडियस है r, इसका रेडियस है 2r. ये तो दे दिया आपका. ठीक है. फर्स्ट वन इज गिवन, इनर वन इज गिवन अ चार्ज ऑफ q, आई थिंक yes, inner one is given sorry q1 and outer one is given a charge q2. This is q1 and q2 and both have the same density. Charge density यहाँ पर भी यहाँ पर दोनों इक्वल है. So what we write, that is q1 equal to sigma 1 into 4 pi r square, and sigma 1 is your sigma 4 pi r square, and charge on second one will be surface charge density sigma 2 4 pi 2r whole square. So sigma 2 and sigma 1 they are equal because they already mentioned that they are equal. Surface charge densities are equal. That has already been mentioned. Surface charge densities are equal. ये mention किया है. तो ये आ गया. तो जब इतना दिख रहा है तो आपको इसका मतलब क्या हो जाएगा, दिस इज अगेन भी सिग्मा 4 पाई 4 आर स्क्वायर, ये हो जाएगा. तो Q1 अपॉन Q2 अगर आपको निकालना होगा, Q1 अपॉन Q2, तो वी कैन जस्ट हैव 4 पाई सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन 4 पाई सिग्मा into 4r square. That means we are having 1 upon 4 or 1:4 will be the 1:4 will be the ratio. This is how we can solve even the second question. तो ये 2 मार्क्स के कुछ क्वेश्चन आपको बता दिए. ये मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बताया, जो छोटा न्यूमेरिकल डायरेक्ट पूछ लेते हैं, या कुछ जैसे कि चार्ज इज confined at the center of a cube of side something something, then what will be the net flux. तो इसमें q upon epsilon naught होगा. What is the net flux passing through each face of the cube. तो एक क्यूब है 6 फेसेस, तो 1/6 ऑफ दैट थिंग. ये हुआ डायरेक्ट क्वेश्चन. तो मैं उनको नहीं बता रहा हूँ, जो भी थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, थोड़ा डायरेक्ट से हट के, वही मैंने अभी यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश किया. नाउ वी विल सी some of the questions of 3 marks question, how such questions could be there. They may be conceptual. Direct question होगा तो मैं नहीं बताऊंगा. I will share only those questions which are slightly conceptual. Okay, let us see. Now this is in fact a relatively bigger question, and you can see
A spherical conducting cell of inner radius r1 and inner radius r1 and outer radius r2 has a charge q. A charge small q is placed at the center of the cell. What is the surface charge density on the inner surface and outer surface of the cell? Write the expression for electric field at the point x is greater than r2. ठीक है, ये आपको पूछा गया. Well, now how could we solve this question? We have not given you a direct solution over here, but we have to explain you each and everything. Let us see the given solution. जो ये जो cell है, ये वाला cell है. This is the cell. ये solid portion है और ये hollow portion है. This is solid portion and this portion is hollow. ठीक है, तो अब आपको देखने चीज क्या है कि अगर अंदर वाले में आपने चार्ज क्यू रखा है तो नेचुरली द इनर सरफेस, ये अगर प्लस क्यू है तो इनर सरफेस विल गेट माइनस क्यू चार्ज. ये ड्यू टू इंडक्शन. भाई आपका ये पोर्शन अगर प्लस क्यू है तो अगले वाले जो सरफेस सामने का दिख रहा है तो अंदर वाले को क्या कर देगा, ये माइनस क्यू कर देगा. तो ये पूरा अंदर वाला चार्ज सरफेस होगा माइनस क्यू. दैट मीन्स द चार्ज the charge on inner surface of the shell is minus q due to induction. ये तो क्लियर हो गया. इतना हो जाएगा. तो जब ये हो जाएगा तो आपका उसमें क्या पूछा गया, व्हाट इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी. तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा, सिग्मा 1 फॉर इनर पार्ट. सिग्मा 1 मस्ट बी इक्वल टू surface charge density as the name implies. We can have the charge minus q upon surface area 4 pi r1 square. It is 4 pi r1 square. ठीक है, तो दिस इज व्हाट वी हैव द इनर सरफेस डेंसिटी. ये इनर सरफेस में होगा. अब आउटर सरफेस चार्ज डेंसिटी, अब यहाँ पर माइनस क्यू होगा तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो इसका ड्यू टू इंडक्शन अगेन द आउटर सरफेस विल गेट एन एडिशनल चार्ज ऑफ प्लस क्यू ऑल्सो ड्यू टू दिस इनर पोर्शन हैज माइनस क्यू. और ये दोनों मिलकर न्यूट्रलाइज करेगा. तो ड्यू टू इंडक्शन the outer surface can get plus q charge in addition to capital Q. In addition to capital Q, तो इसके मतलब क्या हो गया कि नेट इलेक्ट्रिक द नेट चार्ज डेंसिटी of outer surface sigma 2 will be equal to total charge q plus small q upon 4 pi r2 square. यहाँ पर r2 है बिगर आउटर रेडियस है एंड r1 था यहाँ पर इनर रेडियस. तो दिस इज व्हाट वी हैव द surface density of the outer one. तो सेकंड ये फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट ऑफ ए आ गया. दूसरा में लिखा राइट द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट x ग्रेटर देन एट ए पॉइंट x ग्रेटर देन r2. इससे भी ज़्यादा दूर डिस्टेंस पे अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो सिंपली उसमें टोटल चार्ज क्या काउंट हो जाएगा, दिस q and q both will be counted together and then we have electric field will be equal to 1 upon 4 pi epsilon naught small q plus capital Q upon x square. Remember
this is very important thing. Here we have to count both the charges Q as well as capital Q, because Q was already existing, that is placed inside the at the center of the cell. तो यहाँ पर उसको भी काउंट करेंगे क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग बाहर कहीं पर एक यहाँ पर कहीं निकाल लें, तो ये हो जाएगा। तो इस टाइप के आपने कुछ क्वेश्चन देखा है। लेट अस टेक वन मोर क्वेश्चन and so that we can just finalize that thing. I am just calling the questions because no need to write, because all the questions and solution are already attached in the PDF form, PDF file में already दिया रखा है। तो ये क्वेश्चन क्या है, that I am reading. A thin metallic sphere, a spherical shell of radius r carries a charge q on its surface. ठीक है। A point charge q by 2 is placed at the center C, and another charge plus 2q is placed outside the cell at point A, वो दे रखा है। ठीक है। तो अब ये समझ सकते हैं कि क्वेश्चन कैसे बन सकता है यहाँ पर। और लेट अस just draw the diagram and then we will just explain, because otherwise it could directly take some more time to write the question. I am just making the diagram. This is the cell and C is the center of the cell, and at a distance x from the cell there is an outer point A where 2q is placed, and on the surface of the cell there is a charge q is placed, and at the center q by 2 is placed. ये दे रखा है आपका। ठीक है। ये q by 2 है, ये q है सरफेस पे और बहुत दूरी पे आपका और 2q चार्ज दे रखा है। तो आपको जो निकालना है, फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सेल, state the law used, find the force on the charges at the center C of the cell and at the point A. वेल दोनों चीजें आपको निकालना है। अब देखिए ये एक सेल दे रखा है, तो सेल मतलब बहुत थिन सेल ये भी दे रखा है, थिन सेल, ये जो है काफी थिन सेल, तो इसका मतलब कोई इसमें इनर और आउटर रेडियस वाला मामला नहीं है। तो दिस चार्ज कुड नॉट बी काउंटेड बिकॉज वी नो दैट फॉर एनी चार्ज मेटेलिक सेल, ये मेटेलिक सेल रखा हुआ है, ये मेटेलिक है, मेटेलिक naturally inside it there is no electric field, कोई इनसाइड कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी, अंदर कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं होगा तो क्यू बाई टू का कोई रोल ही नहीं होगा इन इन गिविंग द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो नेचुरली जो फर्स्ट पार्ट में जो पूछा गया, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सेल, then it will not be this if the entire cell is considered as the Gaussian surface, then it will not contain any charge, because inside it electric field is zero. Since flux is zero, then therefore corresponding to this cell electric flux will definitely be zero. ये फर्स्ट पार्ट का तो बिल्कुल ये आ जाएगा। सेकंड पार्ट ये लिखा हुआ है, व्हाट इज द लॉ कंसर्न अबाउट दिस, वी नो इट इज द गॉस लॉ बिकॉज इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज गिवन बाय 1 upon epsilon naught into q. दिस इज गॉस लॉ, सेकंड पार्ट आ गया। एंड थर्ड पार्ट लिखा है फाइंड द फोर्स ऑन सी एज वेल एज ए। यदि सी की जहाँ तक बात है तो यहाँ पर सी को हम ये क्यू बाई टू को काउंट ही नहीं कर रहे, तो अंदर कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही नहीं है, तो देर इज नो क्वेश्चन ऑफ हैविंग एनी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस क्यू बाई टू। तो इस पे तो कोई फोर्स नहीं लगेगा, बिल्कुल क्लियर है। तो देर इज नो फोर्स ऑन सी बट देर इज अ फोर्स ऑन ए, वाई बिकॉज उस समय ये वाला चार्ज भी यूज होगा एंड ये चार्ज भी यूज होगा, देयर दैट वी हैव द फोर्स and what could be the net force acting on this during the counting of force. Remember this q by 2 will not be ignored, तो उस समय इस q by 2 को भी कहाँ पे आना पड़ेगा, सरफेस पे आना पड़ेगा। तो सरफेस पे आना पड़ेगा तो नेट चार्ज जो हो जाएगा q प्लस q by 2, तो 3q by 2 हो जाएगा। अब 3q/2 और 2q के बीच अब फोर्स लगेगा, जो कूलम्बियन फोर्स एट ए पूछा गया, तो एफ ए विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और q1 q2 q1 मीन्स 3q/2 and 2q अपॉन एक्स स्क्वायर।
तो ये आ जाएगा, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट थ्री क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, दैट विल बी द रिजल्टेंट फोर्स। यहाँ पर फोर्स जीरो, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं तैयार करेगा, अंदर इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो, किसी चार्ज सेल के अंदर के इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कुछ होता नहीं है। कोई चार्ज रख भी दे तो उसको काउंट ही नहीं करेंगे, पहली बात ये। So electric flux due to this cell will be zero, first part. Second part, which law is followed? That is this law. This is the Gauss law. And third one, where what is the force? Yeah. So with that, we have completed this chapter. I hope you have enjoyed this. Please don't forget to comment, because that gives us some boosting effect, and so that we can give even better result, even better type of question we can select for the next chapter. Please do remember, it is my humble request. Please like, share, and comment. That is very, very important. Please check each and every question thoroughly, because this will be quite helpful when you appear in the board examination. With that, we have completed the chapter today. We have completed the series, important question series for first chapter, and next time we will take the next chapter and next series. Thank you.